Yeah. Hello, am I audible? Hello, am I audible? Whenever we have strong polyprotic acid, uh, the first dissociation, the first dissociation of strong polyprotic acid is always complete. ठीक है और in general अब और जैसे H2SO4 लिया हमने तो H2SO4 के अंदर में पहला डिसोसिएशन जो होगा ना H2SO4 का दैट इज H2SO4 plus H2O is going to give us HSO4 minus plus H3O plus. Is it okay? So this is going to be termed as first dissociation constant. First dissociation constant. ठीक है या Ka1 भी बोलते हैं इसको of H2SO4. Okay, the important thing about this is this, though it is acid base reaction, it is considered to be 100% forward. 100% forward due to its very high dissociation constant. ठीक है this is all 100% complete. Give it to I K1 value aqueous solution. So for strong acids, it is always going to be the case that the first dissociation is always assumed to be complete. ठीक है और from second dissociation constant onward, that is from the second and subsequent dissociations are considered to be taking place partially as per dissociation
dissociation, equilibrium, dissociation, equilibrium constant. ठीक है. Second and subsequent जो भी रहता है dissociation, they are not automatically taken as 100% complete. Rather, they are taken as, I mean, as much completed as described by the problem. ठीक है. या तो उसको फाइन करना रहेगा या फिर जो डिस्क्राइब रहेगा उसके हिसाब से हम लोग कंसिडर करें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, HSO4 minus aqueous plus H2. This time it is going to be a equilibrium reaction with the final product being SO4 2 minus aqueous H3O plus. Okay. This is going to become the second dissociation constant. A2 H2SO4. ठीक है. एंड इसकी वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ होती है. इसकी वजह से ये भी लाइक 100% कंप्लीट तो नहीं, बट काफी एक्सटेंट तक कंप्लीट रहता है. नॉर्मल कंसंट्रेशंस के लिए जो 10⁻³ वैल्यू, it is almost I mean it is complete to a good extent. Is it okay? Yes, sir. अब पॉइंट ये है कि इसका कैलकुलेशंस वगैरह कैसे होगा, that is something we need to understand. Could you scroll up? I lost connection for a second, so I have to. Okay, one sec. Yes, sir. Thank you. Now calculation parts. Suppose example के लिए maybe ट्राइप्रोटिक एसिड लेते हैं स्ट्रॉन्ग, डाइप्रोटिक नहीं ट्राइप्रोटिक ले रहे हैं. ठीक है ना. H3A और मान लो डाइप्रोटिक रहा तो अकॉर्डिंगली आपका स्टेप्स कम हो जाएगा. या टेट्राप्रोटिक रहा तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा. ओके. H3OA is a strong triprotic acid with concentration C and K2 H2SO4 and K3 sorry K2 H3A and K3 H3A. ठीक है. अब
इसके डिसोसिएशंस के इक्वेशंस कैसे कैसे होंगे हमारे पास, क्या क्या होंगे, that is something which we need to know. So the first dissociation is going to be complete, ठीक है, ये वाला fully complete होएगा, so it will become H2A minus plus H3O plus, ठीक है। ये इनिशियली अगर हम लेते हैं, इनिशियली C1 0 0, एंड ऑफ द रिएक्शन में क्या होएगा, at end this is going to be 0, this is will remain 1, this is going to be almost equal to 0, 1, this will eventually become C and this will become C as well, ठीक है, almost 100% complete, almost 100% complete, ठीक है। Is this okay? Yes, sir. अब उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड जो होते हैं वो दे आर गोइंग टू बी गाइडेड एज बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर अब सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होएगा, दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इस वक्त कंसेंट्रेशन इनिशियल कितना रहेगा, that is going to be C again, 1 0 0, sorry, this won't be 0, ये फर्स्ट वाले स्टेप से C है तो यहाँ पर C आएगा इनिशियली, दिस विल बी C, एट इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, DOD is equal to alpha 1, this can be written as C1 minus alpha 1, 1 C alpha 1 C plus C alpha 1, right, and Ka2 will be equal to concentration of Ha2 minus multiplied by H3O plus divided by H2A minus, ठीक है, which is nothing but C alpha 1 into C multiplied by 1 plus alpha 1 divided by C1 minus alpha 1. C will get cancelled. So K K2 is equal to C alpha 1 1 plus alpha 1 divided by 1 minus alpha 1, ठीक है। या फिर ये सेकेंड डिसोसिएशन हो रहा है ना, so better let us keep it alpha 2, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट को अल्फा 2 रखते हैं, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो अल्फा 1 है और वो ऑलमोस्ट 100% है, ठीक है, अल्फा 1 इज इक्वल टू 1, इसको 2 रखते हैं, तो बाकी सारे के साथ कंसिस्टेंट रहेगा, नहीं तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर दूसरा हो जाएगा और हर बाकी जगह पे दूसरा रहेगा, सो दैट माइट क्रिएट प्रॉब्लम।
third dissociation. It is going to be Ha2 minus plus H2O plus minus A3 minus plus H2O plus H3O plus. So now initial, this is going to be C alpha 2 will be 1. This will obviously be 0 and this will be C 1 plus alpha 1. Sorry, alpha 2. ठीक है? This configuration, these two are going to be carried forward over here, and again at equilibrium let DOD be equal to alpha 3. तो क्या हो जाएगा? C alpha 2 1 minus alpha 3 will remain 1. This will become C alpha 2 alpha 3 and this will become C 1 plus alpha 2 plus alpha 2 alpha 3 alpha 2 alpha 3. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हेलो, are we able to understand this? Yes, sir. बेसिकली यहाँ पे C alpha 2 alpha 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो इधर C alpha 2 alpha 3 ऐड हुआ. ठीक है, यहाँ पर भी C alpha 2 alpha 3 ऐड हुआ. Therefore फिर से नेक्स्ट इक्वेशन जो होगा हमारा वो हो जाएगा K3 is equal to concentration of A3 minus into H3O plus divided by Ha2 minus is equal to C1 plus alpha 2 plus alpha 2 alpha 3 multiplied by C alpha 2 alpha 3 divided by C alpha 2 1 minus alpha 3. ठीक है, ये सारे कंडीशंस आ जाएंगे. अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के टाइम पर we will have certain important things. जनरली अगर ये ट्राई प्रोटिक है एंड ये वीक एसिड यहाँ पर हो रहा है, रिलेटिवली वीकर, स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यहाँ पर अगर वीक एसिड हो रहा है तो यहाँ पर थर्ड डिसोसिएशन जो होगा दिस इज गोइंग टू बी इट इज गोइंग टू बी फर्दर वीकर एसिड. ठीक है, तो पहला डिसोसिएशन के टाइम पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, दूसरे डिसोसिएशन के टाइम पर रिलेटिवली वीक एसिड बनेगा और तीसरे डिसोसिएशन में इट विल बिकम a weak acid, proper weak acid, not relative weak acid, but proper weak acid. Are we getting this point? Under such circumstances, the alpha 3 is going to be much lesser than 1, and alpha 2, the product of alpha 2 and alpha 3 is again going to be much smaller than 1 plus alpha 2. ठीक है, यानी alpha 2 alpha 3 is going to be much smaller than its predecessor, that is 1 plus alpha 1. Are we getting this point? ठीक है, and under that circumstance
the product alpha 2 alpha 3 can be neglected from here. This part can be neglected in comparison to this. Not only this part can be neglected from the denominator. Is it okay? Hello. Yes, sir. Okay. So once these things are modifications क्या क्या हुए? Alpha 2 alpha 3 will be much smaller compared to 1 plus alpha 2. Also, alpha 3 is going to be much smaller than 1. Therefore, 1 minus alpha 3 can safely be considered as 1. ठीक है, ये दो हम approximations use करते हैं यहाँ पर, and we have K3 will be equal to C into 1 plus alpha, what alpha 2, C alpha 2 हो गया alpha 3. ठीक है, is this okay? Ka alpha 3 is equal to C into 1 plus alpha 2 alpha 3, and फर्स्ट वाले में क्या है हमारे पास, दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करके सपोज 1 माइनस अल्फा 2 को भी अगर हम नेग्लेक्ट कर पाते हैं, इन केस अगर कर पाते हैं, ठीक है, नॉट मैंडेटरी कि हो ही जाए, अगर होता है तो कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी मच इजियर. इफ नॉट देन लाइक 2 and 1 के कंपैरिजन से, 2 and 1 के कंपैरिजन से व्हाट आर द कॉमन थिंग्स? ठीक है, ये वाला टर्म कॉमन है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम अल्फा 2 by 1 minus alpha 3, यहाँ Ka2 1 minus alpha 2 1 minus alpha 2 divided by alpha 2. ठीक है, सो 2 and 3 को लेकर के अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो अननोन्स हैं, that is alpha 2 and alpha 3, and दो इक्वेशंस हैं. Is it okay? दो अननोन्स हैं and दो इक्वेशंस हैं, so it is going to be solvable one, it won't be unsolvable. ठीक है, दो इक्वेशंस है एंड दो अननोन्स हैं, तो ये इवेंचुअली सॉल्व हो ही जाएगा. देयर इज नो डिफिकल्टी, आई मीन देयर वोंट बी एनी डिफिकल्टी. मेथड क्या यूज होएगा इन सॉल्विंग इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी विथ अस. हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है एक ये बन जाए, क्या बोलते हैं, क्यूबिक एक्सप्रेशन बन जाए. तो क्यूबिक बन जाएगा तो फिर इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व.
बट अदरवाइज क्वाड्रेटिक तक अगर बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन थिंग इज वेरी मच श्योर कि चूंकि दो वेरिएबल्स हैं एंड दो इक्वेशंस हैं, तो द इक्वेशंस आर गोइंग टू बी डेफिनेटली सॉल्व्ड एंड यूनिकली। एम आई मेकिंग सेंस? कुछ ना कुछ करके ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो ही जाएंगे, बिकॉज देर आर two variables and two equations are there. Making sense? Yes, sir. ठीक है। Okay. Next thing is dissociation of weak polyprotic acid. ठीक है। Weak polyprotic acid. इसमें बेसिकली कोई भी स्टेप, इवन फर्स्ट स्टेप इज इनकम्प्लीट, सो देर आर गोइंग टू बी ट्राई बेसिक अगर अज्यूम कर रहे हैं तो देर आर गोइंग टू बी 3 dissociation represented something like this. C से स्टार्ट होगा 1 0 0, C 1 minus alpha 1 1, C alpha 1 and C alpha 1. That's first equilibrium, followed by the second one, H2A minus plus H2O, giving us HA minus, sorry, HA 2 minus plus H3O plus, that is C alpha 1 1. This is going to be 0, and this is going to be C alpha 1, where C alpha 1 1 minus alpha 2, this is 1. This will become C alpha 1 alpha 2. This will become again C alpha 1 plus C alpha 1 alpha 2, or simply C alpha 1 into 1 plus alpha 2. The third equation, equilibrium reaction, is going to be HA2 minus plus H2O. H3O plus, and this is C alpha 1 alpha 2. This is 1. This will be 0. This will be C alpha 1 1 plus alpha 2. At equilibrium फिर से, at equilibrium DOD is equal to alpha 3. This will become C alpha 1 alpha 2 1 minus alpha 3. This will be 1. This will become C alpha 1 alpha 2 alpha 3, and this will become C alpha 1 1 plus alpha 2 plus alpha 2 alpha 3. Is this okay? ये समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? This is just simple equilibrium setup which I am trying to create. At equilibrium, DOD is equal to alpha 2.
ठीक है, तो ये तीनों जो कि साइमल्टेनियसली क्रिएट होएगा, इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी established that these are going to be in simultaneous equilibrium। तो इसका कंट्रीब्यूशन H प्लस का, और इससे इसके बेसिस पर इसका कैलकुलेट किया और इसके बेसिस पर इसका कैलकुलेट किया। अब एक्चुअली तीनों के यहाँ, तीनों में, अरे एक सेकंड, ओ there some small mistake I have done। ये ऊपर वाला जो केस है ना, ऊपर वाला डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक एसिड, बाकी सारी चीजें सही लिखी हैं मैंने। ये डिसोसिएशन हुआ, फर्स्ट डिसोसिएशन हुआ, फर्स्ट डिसोसिएशन कंप्लीट हुआ है, सेकेंड डिसोसिएशन पार्शियल हुआ है, इसके थ्रू H3O प्लस का कंट्रीब्यूशन इतना आया। ठीक है, फिर थर्ड डिसोसिएशन जब हो रहा है तो इसमें H3O प्लस ऐड हो रहा है। अब ये H3O प्लस ऐड होने के बाद जो फाइनल कंसेंट्रेशन होगा ना, वो सेकेंड इक्विलिब्रियम के लिए भी एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आ रही है? ये एक चीज कंसिडर करना, मैं यहाँ पे मेरे से somehow रह गया है। I have not considered this. That is the mistake which I have created while doing it for the first time। वो ऊपर कर रहा था तो somehow वो दिमाग में मेरे नहीं रहा। While writing this equation, I got to understand ये बेसिकली साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में ही तीनों स्टेप्स रहते हैं। दे आर नॉट डिस्टिंक्टिव, मतलब ऐसा नहीं कि पहला वाला हो जाएगा फिर दूसरा वाला होगा एंड वो कहीं और हो रहा है। It's not like that, they are happening in same vessel and they are being established simultaneously। तो H3O प्लस का कंसेंट्रेशन जो होगा ना, वो तीनों स्टेप्स के लिए एट द सेम टाइम सेम रहेगा। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होएगा तो तीनों स्टेप्स के लिए H3O प्लस का कंसेंट्रेशन, द आयन विच इज कॉमन, इज गोइंग टू बी द सेम फॉर ऑल थ्री स्टेप्स। इज इट मेकिंग सेंस? और ये मॉडिफिकेशन अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो दिस थिंग इज गोइंग टू बी C प्लस C अल्फा 2 प्लस C अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी H3O प्लस की, rather than this value which I am taking। ठीक है, so इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेंगे। You guys also modify it accordingly in your this thing notebook। Is it okay? अभी ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉपर्ली। उस समय थोड़ा सा नीचे भी होते हुए दिख नहीं रहा था। ये वाला इक्वेशन तो परफेक्ट है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और ये नेग्लेक्ट होने के बाद C अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 हो रहा है। यहाँ पर भी ये सेम चीज नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा और नेग्लेक्ट होकर के फिर से वो वही इक्वेशन आएगा। ठीक है, दिस पार्ट कैन डेफिनेटली बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो इक्वेशन में मेरे कोई चेंजेस नहीं होएगा, फाइनल इक्वेशन जो रहेगा A2 का जो पहले दिख रहा था सॉल्विंग के टाइम पर दिखेगा वही, बट ये चीज कॉमन वाइल राइटिंग द इक्वेशंस, दिस थिंग शुड बी प्रैक्टिस। आई मीन आपके दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि इट इज हैपनिंग लाइक दिस। ठीक है, अल्फा 2 अल्फा 3 का प्रोडक्ट जो होगा, अल्फा 2 अल्फा 3 का प्रोडक्ट, वो स्मॉल होने की वजह से इसके रेस्पेक्ट में ये यहाँ पर भी नेग्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी नेग्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो अब ऐसे सिनारियो में द
thing which is remaining with us is like देखो calculations में तो things are going to be like that only जैसा पहले था उसमें कोई changes नहीं हुआ है ऊपर वाले केस में भी the only change which happened is theoretically ये वाला concentration जो हम लिख रहे थे C plus C alpha 2 plus C alpha 2 alpha 3 that has changed and वो चेंज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की वजह से हो रहा है ठीक है वीक पॉलीप्रोटिक एसिड में सेम चीज को एक्चुअली हम लाइक ये जो फाइनल कंसेंट्रेशन आया हमारा H3O प्लस का वो तीनों स्टेप्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा यहाँ पर भी हमारा मॉडिफाइड H3O प्लस जो हो जाएगा वो इंस्टेड ऑफ ये रहने के इट विल बिकम C alpha 1 plus C alpha 1 alpha 2 plus C alpha 1 alpha 2 alpha 3. Is it okay? Same will be the case at this place. This thing will be replaced by C alpha 1 plus C alpha 1 alpha 2 plus C alpha 1 alpha 2 alpha 3. And यहाँ पर तो ये सेम चीज है ही नाउ हमारे पास तीन इक्वेशंस रहेंगे K1 this is going to be equal to C C alpha 1 into C alpha 1 1 plus alpha 2 plus alpha 2 alpha 3 divided by C into 1 minus alpha 1 ठीक है यहाँ पर generally this term is going to be neglected because of the fact that alpha 2 alpha 3 the product of alpha 2 and alpha 3 is going to be much smaller than 1 plus alpha 2 और second जो होएगा K2 this is eventually going to be C alpha 1 alpha 2 the concentration of this species we can write it down फिर यहाँ पर भी इसको लिख देते हैं A1 is equal to concentration of H2A minus H3O plus divided by concentration of H3A. Sorry. H2A minus, this is going to be C alpha 1 alpha 2 into C alpha 1 1 plus alpha 2 plus alpha 2 alpha 3 divided by C alpha 1 1 minus alpha 2. This is going to be the second equation. Is this clear? Hello?
Danis, that was not for you. Yeah. Okay. K2, so K2 का एक्सप्रेशन हमारा ये हो जाएगा एंड K3 का एक्सप्रेशन हमारा ये हो जाएगा, that is going to be H, sorry, A3 minus concentration of A3 minus concentration of H3O plus divided by concentration of HA2 minus. This will be C alpha 1, alpha 2, alpha 3 multiplied by C alpha 1, 1 plus alpha 2 plus alpha 2, alpha 3 divided by C alpha 1, alpha 2, 1 minus alpha 3. ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर आई एम गोइंग टू कंपेयर, इक्वेशन 2 पर अगर कंसंट्रेट करेंगे तो देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि यहाँ से निकल के आएगा, दैट इज समथिंग जो कि अनचेंजिंग रहता है. ठीक है, K2 में this term is definitely going to be neglected because this is going to be much lesser than 1 plus alpha 2. ठीक है, not only this, क्योंकि ये वीक एसिड का सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट या सेकेंड डिसोसिएशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वीक एसिड है तो अल्फा 1 ही it's not going to be complete and alpha 1 itself is going to be a small number, may not be very small but it is definitely going to be a small number. ठीक है, मे बी 20, 30, 40%, और तभी उसको वीक बोल रहे हैं, अदरवाइज फिर वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड की कैटेगरी में आता है. एनीवे, फर्स्ट अगर थोड़ा हाई भी है तो कुछ यानी 20-30% भी है, 40-50 भी है, 60 डजंट मैटर. इसका सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मच स्मॉलर कंपेयर टू Ka1 एंड ऐसे सिनेरियो में अल्फा 2 जो होगा that will definitely get hampered a lot and that will be much smaller than 1. ये हम क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, अगर किसी एसिड का फर्स्ट डिसोसिएशन 60 या 70% भी होता है तो उसका सेकेंड डिसोसिएशन जो होगा वो लेवल काफी कम हो जाएगा. ठीक है, मतलब जनरली फर्स्ट डिसोसिएशन अगर 60-80% है दैट मीन्स K1 is going to be somewhere close to maybe 10 to the power minus 1 और 10 to the power minus 2 के रेंज में रहेगा Ka1. ठीक है, और Ka2 जो रहेगा that will in that case generally 10 to the power minus 6 minus 5 minus 6 के आसपास आ जाएगा. ठीक है, 10 to the power minus 1 के आसपास मेरा Ka1 रहेगा. Ka2 जनरली ऐसे एसिड्स का 10 to the power minus 5 से minus 6 के आसपास, 10 to the power minus 6 से minus 5 के आसपास रहेगा. एंड ये चीज जो है ना, this will lead to very smaller value of alpha 2. ठीक है, और अल्फा 2 का स्मॉलर वैल्यू होने की वजह से यहाँ पर ये और ये टर्म, ठीक है, दोनों ही 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाता है. ठीक है, अल्फा 2 प्लस 3 ये दोनों ही टर्म नेग्लेक्ट हो जाता है. एंड what happens is this second dissociation constant becomes equal to this thing. ठीक है, और ये क्या है, this is nothing but इसका concentration. ठीक है, for all
वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट वो इसके कंसंट्रेशन के बराबर रहता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लगभग सारे वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गोइंग टू बी सेम एज, ये क्या है, second conjugate base, right? This is first conjugate base, this is second conjugate base. Second conjugate base के concentration के बराबर second dissociation constant रहेगा. Is it okay? Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है? अल्फा 2 अल्फा 3 दोनों नेग्लेक्ट हो गए, अल्फा 2 नेग्लेक्ट हो गया, अल्फा 2 अल्फा 3 प्रोडक्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा, और ये नेग्लेक्ट जो होएगा वो हर जगह से होएगा. आई मीन इट्स नॉट दैट ओनली इन दिस इक्वेशन इट इज गोइंग टू बी नेग्लेक्टेड, it will be neglected from here also, so that the things can be solved smoothly. और यहाँ पे दोनों नेग्लेक्ट होंगे तो it will become C alpha 1, and यहाँ पर भी C alpha 1, it will get cancelled, and K2 will become equal to this thing. ठीक है, और K3 में सेम चीजें हम लोग अप्लाई करेंगे. ये दोनों टर्म्स नेग्लेक्ट होंगे, ये नेग्लेक्ट होएगा, तो C अल्फा 1 यहाँ से और अल्फा 2 यहाँ से, C अल्फा 1 अल्फा 3 जो है, ठीक है, C अल्फा 1 अल्फा 3 इज इक्वल टू K3. ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, C अल्फा 1 अल्फा 3 इज इक्वल टू K3. फर्स्ट वाले से जो रिलेशन आएगा हमारा वो रहेगा ये वाला कैंसिल हो जाएगा पूरा. अल्फा 1 डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ K1, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ K1, alpha 1 may or may not be neglected compared to, may or may not be neglected compared to 1. ठीक है, अगर ये 1 के रेस्पेक्ट में नहीं नेग्लेक्ट होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहेगा. कॉम्प्लिकेटेड मतलब सॉल्विंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा, और अगर in case this is going to, this is value is also going to be small, like 10 to the power minus 3 minus 4 अगर हो जाता है, minus 4 के आसपास हो जाता है, तो अल्फा 1 भी जनरली स्मॉल हो जाएगा, और उस केस में यहाँ पे हम अल्फा 1 को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट ये अगर 10 टू द पावर माइनस 4 के आसपास नहीं पहुंच गया है, K1 जो है 10 टू द पावर माइनस 4 के रेंज में नहीं है, उससे उससे बड़ा है. ठीक है, तो अल्फा 1 जो होगा वो नेग्लेक्शन के लिमिट के ऊपर रहेगा. इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू 1. ठीक है, उसको एकोमोडेट करके हमको इक्वेशन सॉल्व करना होगा, प्रॉपर इक्वेशन. इज इट ओके? एम आई मेकिंग सेंस? सो सॉल्व्ड इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. फाइनली K1 K1 is equal to C alpha 1 into C alpha 1 divided by C into 1 minus alpha 1. ठीक है, ये 1 हो जाएगा. It may or may not be, I mean alpha 1 may or may not be neglected depending upon value of K1. So इसलिए इसको जेनरिक नहीं कर रहा हूँ. बाकी दो केसेस में बाकी सारे क्वांटिटीज जो हैं they are definitely going to be neglected. ठीक है, सो इसलिए उनको assertively सॉल्व कर रहा हूँ, अल्फा 2 एंड अल्फा 2 3. ठीक है, this will become equal to टर्म कैंसिल हो जाएगा. K2 is equal to C
alpha 1, alpha 2 to concentration of Ha2 minus. This will be second equation. And third equation will turn out to be K3 is equal to alpha 1, alpha 3. ठीक है, so K by K3 जो होगा K2 by K3, that is going to give us the ratio of alpha 2 is to alpha 3, right? K2 K3 जो होगा वो alpha 2 and alpha 3 का रेशियो हमको बताएगा, ठीक है। और ये भी चीज क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज ट्रू, फाइन, irrespective of the triprotic acid which we are taking. For all weak triprotic acid, K2 by K3 जो होगा this will be equal to alpha 2 by alpha 3. Is it okay? और ये चीज भी यूनिवर्सली मतलब हमेशा ही ट्रू रहता है. So and we have three equations and three variables again, so this is something which will be easily solved. It won't be that difficult to solve. Making sense? Okay. So this is all about yeah, common ion effect in various electrolytic species, especially acids and bases. ठीक है, salts के लिए common ion effect कैसे काम करता है, that is something which we still need to see, and that is the next thing which we are going to have a look at, how the common ion effect is going to play its role in cases of salts, the third electrolytic category. अच्छा, ये एसिड के केसेस में जैसे अप्लाई हो रहा है, एग्जैक्टली सेम तरीके से बेसिस के केसेस में भी इसी तरीके से चीजें अप्लाई होती हैं, ठीक है। द ओनली थिंग इज वहां पर H3O प्लस के कंसेंट्रेशन के बदले OH माइनस का कंसेंट्रेशन कंसिडर हम करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली इक्वेशंस विल गेट मॉडिफाइड. जहां भी हम H3O प्लस के लिए लिख रहे हैं चीजें, इट विल बी फॉर OH माइनस इंस्टेड, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम वे. नाउ next thing we are going to look at is salt के hydrolysis and the common ion effect. Is
ठीक है। द सेवेंथ थिंग इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले सॉल्ट्स का डेफिनेशन क्या होता है, सॉरी सॉल्ट बोल रहा हूँ, सॉल्ट्स का डेफिनेशन तो पता ही है हम लोगों को। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, दैट इज समथिंग व्हिच आई नीड टू टेल यू गाइस। वैसे पहले भी बताया हुआ है, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज न्यू। There is this term hydro and then another term lysis. Hydro means water and lysis is breaking down, right? So it's basically breaking down of water molecules, or rather say solvent molecules due to strong interactions with polarizing ions generated from various salts. ठीक है, so hydrolysis is breaking down of water under the influence or due to strong interaction of various polarizing ions generated during uh, or generated from the salt. ठीक है, salts are generally categorized in 4 categories. salts को 4 categories में हम लोग divide करते हैं. They are salts of strong acid and strong base. ठीक है, they are also known as neutral salts. You can name few of them. You all must be knowing this. Salts of strong acid and weak base. ठीक है, strong acid हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक सॉल्ट्स. एसिडिक सॉल्ट्स बोले जाने के पीछे एक और रीजन भी होगा जो हम लोग देखेंगे सब्सिक्वेंटली. बेसिकली रीजन ये होगा कि जब इसको डिसॉल्व करेंगे हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो एसिडिक टर्न आउट हो जाता है. ठीक है, salts of strong acid and weak base. Then we can have salts of weak acid and strong base. Okay, these are going to be basic salts. And the last one is salts of weak acid, weak base. These are again going to be, I mean, अगर दोनों equal level के weak है, then it is going to be neutral. Otherwise, it is going to be mildly acidic or mildly basic salts. अगर एसिड एंड बेस दोनों इक्वल लेवल के वीक हैं, ठीक है, इक्वल लेवल के वीक हैं, तब तो न्यूट्रल सॉल्ट जनरेट करेगा ये. ठीक है, बट अगर मान लो दोनों वीक हैं लेकिन एक थोड़ा ज्यादा वीक है दूसरा कम वीक है, तो जो ज्यादा वीक होगा ना, जैसे एसिड मान लो ज्यादा वीक हुआ कंपेयर टू बेस, तो इट विल बिकम व्हाट, बेसिक सॉल्ट. ठीक है, और अगर बेस वीक हुआ और एसिड स्ट्रांग हुआ तो इट विल बिकम एसिडिक सॉल्ट. ठीक है, तो ये जो होता है वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, वो एक्चुअली रादर देन इनमें से किसी की तरह काम करने के और
एक थर्ड कैटेगरी की तरह काम करने लगता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड बफर, जो कि बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये एंटिटी कंप्लीट होने की, ये डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद. ठीक है, वो बफर की तरह काम करने लगता है. सो फाइन. तो ये चार प्राइमरी तरीके के सॉल्ट्स हैं. ये भी न्यूट्रल एसिडिक या बेसिक सॉल्ट्स हम लोगों को, सॉरी, न्यूट्रल एसिडिक या बेसिक, तीनों में से किसी भी तरीके का टर्न आउट हो सकता है. एन, ए एंड बी, नैब में से कुछ भी ये हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन which component, I mean, what is the relationship between two components, which one is stronger, which one is weaker. अच्छा, ये वीकर हो, सॉरी, जो भी कंपोनेंट हो स्ट्रॉन्गर या वीकर एसिड बेस में से, इसका पीएच जो रहेगा, इसका पीएच दैट इज गोइंग टू होवर इन बिटवीन 6 to 8 ओनली. 7 के थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे में ही ये रहेगा. ठीक है, क्योंकि दोनों वीक है. तो it's not going to be the case that the pH concentration is going to be far off from 7. It will be hovering near to 7 only. वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट जो है उसको अगर हम पानी में डालते हैं, pH is always going to hover around 6 to 8 range. It can never be less than 6 or can never be greater than 8. ठीक है. Now let us start with, like, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें एक्चुअली, लाइक फॉर एग्जांपल ये देखते हैं HA एंड मे बी BOH मिल करके AB सॉल्ट बनाता है एंड H2O बनाता है. ठीक है, अब ये AB सॉल्ट का नेचर जो है, ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो this AB when dissolved in water will produce AB dissolved in water will produce A plus aqueous and B minus aqueous. ठीक है, एंड फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगा. इनकी बाइंडिंग जनरली H2O के साथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो H2O को हाइड्रोलाइज कर पाए, यानी ब्रेक कर पाए. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली इस चीज को अगर देखेंगे हम लोग ना, HA को, तो HA में H और A के बीच का बॉन्ड जो होता है दैट इज गोइंग टू बी रिलेटिवली वीकर बॉन्ड, जिसकी वजह से वो इमीडिएटली ब्रेक कर जाता है. पानी वगैरह में जो उसको डालेंगे तो it is going to completely break down because the bonding strength of A and H is not that great. Making sense? अब ये not that great होने का मतलब क्या हुआ? बेसिकली ऐसा होता है कि इनके बीच का बॉन्ड जो है उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, कोवैलेंट कैरेक्टर कम है. कोवैलेंट कैरेक्टर जब भी बढ़ता है बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा इंक्रीज होता है, आयनिक कैरेक्टर जब बढ़ता है बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा कम होता है. ऐसा हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, या ये जनरल रूल होता है, राइट? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से A एंड H के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम होएगी, क्योंकि द बॉन्ड कैरेक्टर इज मोर ऑफ एसिडिक. ठीक है, अब ऐसा A प्लस जो आता है, तो इस A प्लस की टेंडेंसी किस टाइप की होएगी? इट विल बी लेस कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग टाइप रहेगा एंड मोर ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मिंग टाइप रहेगा. ठीक है, ये H2O के साथ अगर इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, विल इट बी गुड और बैड? What do we think? Will it be good or bad? If A plus has tendency to form ionic bonds, its ability, or its ability to take electrons from coordinated electrons from H2O, will this tendency be good or bad? जनरली वो एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी वैसे एटम्स में ज्यादा होती है जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्मिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है. ठीक है,
आयनिक बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी जिसके पास ज्यादा है उसमें ये एक्सेप्टेंस की लेवल जो होगी दैट इज गोइंग टू बी वेरी मिनिमलिस्टिक. मेकिंग सेंस? इज इट Yes. ओके? Yes, sir. Okay. So, uh, because of this, the bonding between this lone pair of electrons and A plus is going to be weaker or just sufficient to solvate this A plus ion. That is to dissolve it. ठीक है? It won't be that great enough, which can supply sufficient energy to break this OH bond. Okay. So ये सिर्फ dissolve होके ही रह जाता है. Same will be the tendency with B minus. B minus won't have a different tendency. It will have similar tendency. ठीक है? अगर A या B में से कोई भी एक वीक होता, जैसे HA अगर वीक एसिड का बाई प्रोडक्ट होता, मतलब A जो है A प्लस वो वीक एसिड का बाई प्रोडक्ट होता. उल्टा लेके आऊं मैं. Is going to be A minus and this is going to be B plus. ऊपर वाले रिएक्शन के हिसाब से अगर मैं देख के लिख रहा हूँ यहाँ पे तो ये HA है, this is going to produce positive ion, sorry negative ion. H plus होगा, BOH में B plus होएगा and OH minus होएगा. AB सॉल्ट जो बना इसमें A minus है and B plus है, so यहाँ पर भी A minus and B plus रहेगा. यहाँ पर इंटरेक्शन हाइड्रोजन एंड इसके बीच में रहेगा. ओके. एंड इसका इस तरीके से द ओके. माय होल पॉइंट वाज ओनली दिस. जब भी ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट रहेगा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर कोई आयन या स्ट्रॉन्ग बेस से कोई आयन फॉर्म हो रहा होगा तो उसकी ये कोऑर्डिनेशन टेंडेंसी जो होती है ना दैट इज गोइंग टू बी वीकर. या हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी भी जो होगी दैट इज गोइंग टू बी वेरी वीक. एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस the hydrolysis cannot commence. ठीक है? It is only when a weak acid or base is going to come into picture. Weak acid or weak base is going to come into picture. Their ions will have certain level of polarizing tendency, and then they can form a stronger bond with H2O, which can lead to eventually breaking down of H2O. ठीक है? और वो ब्रेकिंग डाउन के बाद H2O के we will have certain things appearing. So let me start with this, the salt of first type. ठीक है? It already. Okay, let me conclude here. इसका explanation मैं next मतलब बता दिया है. Salt of aqueous solution of salt from acid and from base. This is neutral salt and no hydrolysis salt. No hydrolysis. No hydrolysis. ठीक है? ठीक है, आज के लिए यहीं पे कंक्लूड करता हूँ. कल के दिन में आई विल डिस्कस ऑल दीज थ्री थिंग्स, मतलब इसके 2-3 केसेस जो भी हैं वो डिस्कस करूंगा मैं. ठीक है? All right, sir. Thank you. ओके.